بنگلہ دیش نے مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ بنگلہ دیشی خارجہ کے مطابق مشترکہ دفاعی فریم ورک میں شمولیت پر مثبت رویہ رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی ان فوکس نے مکہ باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دیا۔ FPIF کے مطابق ٹرمپ کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت عظمیٰ سے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر کارروائی اور بانی کو فوری طور پر الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے توہین عدالت کے مرتکب افراد کو شو کاز نوٹسز جاری کر کے ذاتی حاضری کا حکم دیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست کا متن عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ بانی PTI کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شفٹ طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ آنکھوں کے معائنے میں شفا اسپتال کے 2 ماہرین نے حصہ لیا۔ پیمز کے متعلقہ ماہرین نے دیگر طبی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کی کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے پانی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ پنجاب کے لوگ چھوٹے صوبے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان کے 8 ڈویژن سے صوبے بنائے جائیں تو وفاق کی طرف سے سب سے زیادہ پیسہ ان 8 صوبوں کو ملے گا۔ اس کے بعد سندھ میں بننے والے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں کے جامع ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ خوازہ خیلہ و شام ایکسپریس وے کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور۔ لیسکو، ہیسکو، پیسکو میں بجلی کی تقسیم کے نظام کی کارکردگی بہتر بنانے کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار برقرار رکھنے کی ہدایت۔ حکومت کے وسیع تر اقتصادی ترقی اور بہتر رابطہ کاری کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ BRT کی صورت میں اسٹیٹ آف دا آرٹ منصوبہ دے رہے ہیں۔ یلو لائن BRT پر کام جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ کا 80% کام ہو گیا۔ FWO نے 15 ستمبر تک کا وقت دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ MKM پر اداروں کو تباہ کرنے کا الزام، کہا متحدہ نے ان اداروں میں چن چن کر دہشت گردوں کو بھرتی کیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بنیادی اور حفاظتی صحت کی سہولیات عوام تک پہنچانا حکومت کی ترجیح قرار دے دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر اور جدید حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ معیاری صحت کی سہولیات کے لیے بنیادی نظام صحت منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حفاظتی صحت کا نظام مضبوط بنا کر بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے چین اور دنیا بھر کے ممالک سے ایران پر معاشی پابندیوں کی حمایت کی اپیل کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا عالمی برادری سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کا ساتھ نہ دینے والے ممالک کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی۔ چین نے غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے عالمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غزہ فلٹلہ پر اسرائیلی حملے اور وحشیانہ تشدد کے خلاف بنجامن نیتن یاہو کے عالمی گرفتاری وارنٹ پر انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا۔ صنعتی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ صنعت کاروں کو بہترین طبی سہولیات اور بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہیں۔ میئر کراچی کی گفتگو، کہا شہر کی ترقی کے لیے صنعت کار اور بلدیاتی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن منفی پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے۔
कोई भी मजहब तशद्दुद की इजाज़त और तरगीब नहीं देता। ऐसा कोई महज़ब मुआशरा नहीं जो मुख्तलिफ अक़ायद रखने वालों पर तशद्दुद की हिमायत करता हो। वज़ीर आला पंजाब का मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद का शिकार अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। बावर कराए कि कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर दहाइयों से मजहबी अक़ायद की बुनियाद पर तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान हर मजहब और अक़ीदे के मानने वालों को बराबरी का एहतराम देता है। खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक हमलावर मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात नुमायां होने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। चने की दाल में 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कराची में प्याज 150 रुपये और टमाटर की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। अदरक और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। बांग्लादेश ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी मुशीर खारजा के मुताबिक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत पर मुस्बत रवैया रखते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी इन फोकस ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार दिया। FPIF के मुताबिक ट्रंप की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती वजन की अलामत है। मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत इज़्मा से 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और बानी को फौरी तौर पर अशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को शो कॉज नोटिस जारी करके ज़ाती हाज़िरी का हुक्म दिया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतद उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। बानी PTI को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शफ्त तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। आंखों के मुआयने में शिफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने दीगर तिबी मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हातमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट की कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने पानी के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन से सूबे बनाए जाएं तो वफाक की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा उन 8 सूबों को मिलेगा। उसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। तरक्याती मनसूबों के जामे एजेंडे पर तबादला ख्याल। ख्वाजा खैला व शाम एक्सप्रेस वे की तामीर का मनसूबा ज़ेर गौर। लेस्को हेस्को पेस्को में बिजली की तकसीम के निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार की तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत के वसीतर इक़्तिसादी तरक्की और बेहतर राबता कारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। BRT की सूरत में स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा दे रहे हैं। येलो लाइन BRT पर काम जारी है। यूनिवर्सिटी रोड का 80% काम हो गया। FWO ने 15 सितंबर तक का वक्त दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। MKM पर इदारों को तबाह करने का इल्ज़ाम। कहा मुत्तहिदा ने इन इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया।
वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बुनियादी और हिफाजती सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाना हुकूमत की तरजीह करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए मौसर और जदीद हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मयारी सेहत की सहूलियात के लिए बुनियादी निज़ाम सेहत मनसूबा बना रहे हैं। हिफाजती सेहत का निज़ाम मजबूत बनाकर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। अमरीका ने चीन और दुनिया भर के ममालिक से ईरान पर मुआशी पाबंदियों की हिमायत की अपील कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी बरादरी से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी। चीन ने गैर कानूनी और यक तरफ़ा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के आलमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गाज़ा फ्लटला पर इस्राएली हमले और वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू के आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राबता भी कर लिया। सनती इलाकों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सनतकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल हैं। मेयर कराची की गुफ्तगू, कहा शहर की तरक्की के लिए सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मनफी प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। कोई भी मजहब तशद्दुद की इजाज़त और तरगीब नहीं देता। ऐसा कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं जो मुख्तलिफ अक़ायद रखने वालों पर तशद्दुद की हिमायत करता हो। वज़ीर आला पंजाब का मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद का शिकार अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। बावर कराए कि कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर दहाइयों से मजहबी अक़ायद की बुनियाद पर तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान हर मजहब और अक़ीदे के मानने वालों को बराबरी का एहतराम देता है। खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक हमलावर मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात नुमायां होने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। चने की दाल में 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कराची में प्याज 150 रुपये और टमाटर की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। अदरक और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा।